Hello students, welcome on my YouTube channel Physics by Pradeep Kumar. Now in this video we will discuss about the relation between electric polarization vector and the bound surface charge density, and also we define about the free charges and the bound charges. You know very well about the atoms. In case of atom, you have two types of electrons and ओके देखिए एटम में क्या होता है कि एक आपके पास होता है एक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड आपके कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या करते हैं, आउटर ऑर्बिट में आपकी क्या करते हैं, मूव करते हैं। जो आपकी आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उन पर जो आपका न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज होता है, उसका जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, वो आपका क्या होता है, बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है इन द कंपैरिजन ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो जो आपके इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर काफी हाई फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करता है, जिसके कारण में टाइटली क्या रहते हैं, न्यूक्लियस के साथ बाउंड रहते हैं, जिन्हें हम फिर बाउंड चार्जेस बोलते हैं। और जो आपके आउटर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उन पर जो आपका फोर्स अप्लाई होता है न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज के कारण, वो बहुत क्या होता है, वीक होता है, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, जिन्हें बाहर से आप यदि थोड़ी सी भी एनर्जी आप प्रोवाइड करा देते हैं तो ये एटम्स को क्या कर देते हैं, लीव कर देते हैं। और जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसके केस में होते हैं, आपके कंडक्टर्स या मेटल्स के केस में आपको लार्ज अमाउंट में क्या मिलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। बट इंसुलेटर्स के केस में उनके ऑक्टेट पूरे होने के कारण सभी इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, आपके बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो आपका चार्ज आपका एटम से क्या होता है, बाउंड होता है, उस चार्ज को हम बोलते हैं बाउंड चार्जेस, और जो आपका चार्ज फ्री होता है उसे हम बोलते हैं फ्री चार्जेस। In case of dielectric polarization, all the charges, induced charges, are bound to the atoms or molecules of the dielectric. So these charges, in case of electric polarization, are known as bound charges. So there are two types of charges, of free charges and bound charges. Okay. Here both plates are of metal, so these charges are free charges, but these type of charges due to electric polarization are known as bound charges. Okay, now we will define here the electric polarization vector for a piece of dielectric slab. Okay, suppose dielectric slab is like is the shape of a cuboid, is the shape of a cuboid. So consider here a cuboid type dielectric material like this. Sorry, which is something like, suppose this is a dielectric slab of cuboid shape, and the cross sectional area of this face is A, and also the cross sectional area of this face is also A, and the length of the cuboid slab is small, and we apply here an electric field by the help of two metal plates like that. Here minus negative, 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 and the number of negative charge will be equals to the number of positive charge. Remember this point also. And due to this electric field E naught, there also induced some charges, and the molecules of the dielectric slab polarized, and the all the polarized charge or induced charge we can replace the faces of the cuboid. Suppose here is the negative charges, okay, and here is the positive charges, okay, like that. This face of a dielectric slab is replaced by a negative wall, and this face of the dielectric slab is replaced by the positive charge, okay, and the separation between them is L. So we can consider here an electric dipole. हम इसे क्या समझ सकते हैं,
एक इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ सकते हैं जिसका निगेटिव सेंटर इधर है और पॉजिटिव सेंटर इधर है, जिनके बीच का सेपरेशन कितना है आपका स्मॉल l है। तो आप बताइए इसका जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा क्या होगा। नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल, नेट इलेक्ट्रिक, कौन सा इलेक्ट्रिक डाइपोल है आपका इंड्यूस, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, बोलिए P इक्वल्स टू P नेट इक्वल्स टू, क्लियर ना। सपोज a charge is here is small q, negative q, and here is also plus q. Then you know very well formula of the electric dipole moment is any one charge and the separation multiplied by the separation between them, and charge is q and multiply by separation between them l. Okay, and you know very well this charge is due to the distribution of this charge distribution. Okay, and since the cross sectional area of this face is A, and if the bound surface charge density is sigma B, surface bound charge density is sigma B, then you know very well since sigma B equals to surface charge density is equal to total charge and divided by the area in which the total charge distributed. Okay, so we can put this value q equals to sigma B into A in the above expression, then we get P net equals to sigma B into A into L, and this is the volume of the dielectric slab, and we can write this here P net divided by AL equals to sigma B. Okay, and we know that dielectric or electric polarization vector is defined as P equals to P net divided by AL, which is equal to sigma B. That means we can calculate the dielectric polarization vector or electric polarization vector by the help of bound surface charge density in magnitude. तो देखिए यहाँ पर जो आपका सरफेस चार्ज बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो आपकी किसके इक्वल होती है, डाइलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर के क्या के इक्वल होती है, मैग्नीट्यूड्स के, ठीक है ना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर, क्लियर ना। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इसे निकाल सकते हैं। अब आपका आता है कि हमने यहाँ पर 3 वेक्टर्स को यहाँ पर डिफाइन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर and the polarization vector. Now in next article we will relate E, P, D to each other. Okay, so now we will try to obtain the relation between all 3 vectors related to any dielectric substance in an external electric field. Okay, so come back. Relation between among P vector, D vector and E vector. You know very well net electric field. Since net electric field E is equal to, see here, net electric field is equal to the difference between E naught and minus E. That's okay, and
we use some informations related to these quantities. Okay, here now you know very well the concept of the electric field in case of two uniformly but oppositely charged metal plates. ओके, देखिए हम वैसे तो इस आर्टिकल को अभी थोड़ा सा और भी एक्सटेंड करेंगे, बट आपने गॉसिस थ्योरम के केसेस में आपने एक एप्लीकेशन की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये एप्लीकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आगे जब हम कुछ आर्टिकल्स को ड्राइव करेंगे तो वहाँ पर इन फॉर्मूलों का आपको क्या करना है, यूज़ करना है। तो वहाँ पर आपको मैंने कुछ प्रॉब्लम्स दी भी थी इनसे रिलेटेड, और आपको कहा गया था कि आपके पास टू चार्ज्ड मेटेलिक प्लेट्स है, कुछ में मैंने अपोजिटली कहा था, कुछ में मैंने सेम चार्जेस की कहा था, और ये फाइंड करने के लिए कहा था कि उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको भी डिफरेंट सिचुएशन पर कैलकुलेट करना है। तो वहाँ पर जब आपने कैलकुलेट किया होगा तो आपको पता चला होगा। तो यहाँ पर ये जो ई नोट है ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम और इन द वैक्यूम और एयर। ओके, सो यू नो वेरी वेल द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एयर इज डिफाइंड एज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द फ्री चार्ज डेंसिटी, वेयर सिग्मा एफ इज द ये कह सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ फ्री चार्जेस, एंड हेयर this is due to the dielectric substance and this electric field due to the bound surface charge density, which can write as sigma b by epsilon naught। ओके, अब आप देखिए यहां से क्या मिलेगा आपको, E this sigma epsilon naught comes out in the left hand side, then this will be epsilon naught E will be equal to sigma f minus sigma b। Okay, you know very well about the concept of sigma b, and sigma b is equal to the electric polarization vector, so we can put here the value of the sigma b, this will be equals to capital P, then sigma f will be equals to epsilon naught E plus P। Okay, clear? Now here you know very well, we know that D equals to 1 upon 4 pi and Q by R square। Okay, suppose this is a spherical surface where charge plus is distributed, okay, and the radius of this sphere is small r, so this will be equals to Q by 4 pi r square, and you know very well D is independent from the medium, that means it relates with free charges, that is Q is the free charge here, so this is the net charge and this is the surface area, and charge by surface area is equal to the surface charge density, which is sigma f, so we can put here the value sigma f equal to D in this equation, then we get D will be equals to epsilon naught E plus P, and you know very well the direction of, see here, P and E are in same direction, P and E and both are in same direction, and also D is in the same direction of E, so we can take vector notation on each physical quantity in that manner। And also vector D is equal to epsilon E। Okay,
दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। देखिए आपके यहाँ पर इससे जुड़े कोई न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट हाँ ये कह सकते हैं कि इनकी डेफिनेशन इनसे रिलेटेड कोई इक्वेशन आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, और कंपटीशन लेवल पर तो माना जा सकता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको थोड़ा सा ये कंसेप्ट डिफिकल्ट भी लग रहा होगा, क्योंकि इसका जो बेसिक पार्ट है थोड़ा सा स्किप कर कर आपको बताया गया है, ठीक है ना, थोड़ा सा एडवांस है। अब आप इसमें आगे चलिए तो इसमें एक अनादर फिजिकल क्वांटिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। और इस डायइलेक्ट्रिक से रिलेटेड ये आपका लास्ट टॉपिक होगा, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। चलिए इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी मीन्स जब आप किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं, तो सभी डाइलेक्ट्रिक्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है कि वो किस तरीके से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है, और उसके इंटरेक्शन को कैसे अपने लिए रिसीव करता है, उसे सहन करने की प्रवृत्ति उसकी कैसी है, उसकी प्रॉपर्टीज को गेन करने की एक्सेप्ट करने की जो प्रवृत्ति है वह किस तरह की है, तो ये डिसाइड करता है आपका इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है ना। तो ये सभी डाइलेक्ट्रिक्स के लिए, हर डाइलेक्ट्रिक्स के लिए अलग अलग होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक के लिए इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? कांस्टेंट होती है। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, जैसे आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे कि आप जानते हैं कि जो आपका हमने आपको बताया भी था कि जो आपका ये होता है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर या इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर होता है, वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के केस में आपको बताया गया था कि जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। सिमिलरली जो आपका इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर होता है वो आपकी ओवरऑल डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बारे में बताता है, और वो भी आपका क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वी नो दैट dielectric polarization vector P is directly proportional to the effective electric field or net electric field acting on the dielectric slab after, ठीक है ना। तो जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो यहाँ पर कोई ना कोई आपका क्या आएगा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, और जो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आपका यहाँ पर आता है वो आपका होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू काई ई into E, okay, where chi E is known as electric susceptibility, electric susceptibility, which is constant for a given dielectric substance, okay, and it's a unitless quantity, okay. Now we will define a relation between chi E and dielectric constant. Relation between dielectric constant and chi E. Since P equals to epsilon naught chi E into vector E, okay. But you know very well, since displacement vector D equals to epsilon naught E plus P, we can put here this value in this equation. D equals to epsilon naught E plus P is epsilon naught E chi E into vector E, ठीक है। epsilon naught E into E comes out
the bracket 1 plus chi e. Okay, and you know very well since B equals to also k epsilon naught e, so we can put here this value implies that k epsilon naught vector e will be equals to epsilon naught e vector 1 plus chi e. Then these terms are cancelled out to each other, and then we get k equals to 1 plus chi e. Okay, this is the very important relation between the dielectric constant and the electric susceptibility for a given dielectric substance. These are all things about the dielectric substance from basic to high standard. Okay, तो यहाँ पर आपको इन फॉर्मूलाज पर कोई प्रॉब्लम एग्जाम्स में पूछी नहीं जाएगी, बट ये फॉर्मूले आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं और कंपटीशन लेवल पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इन्हें स्किप मत कीजिएगा। एक बार पढ़ने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा सा टॉपिक आपको हार्ड ज़रूर लगा होगा क्योंकि इसके बेसिक में जाने की हमने कोशिश नहीं की है। एक ये आपको आइडिया दिया गया है इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए। इसके बाद हम जो है अभी तक हमने एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया। तो सभी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं, पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब तक हमने ये सीखा। अब हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को हमें ये मानकर चलिए कि स्टोर करना है। अब स्टोर करने के लिए हमें एक सोर्सेज की ज़रूरत होगी। वो सोर्स हमारे पास कैसी होनी चाहिए, तो उस सोर्स के बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और तो अब हमारा जो कंसेप्ट होगा वो आपका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस से रिलेटेड होगा। तो आगे की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लगातार चैनल को देखते रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।